حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 3 جگہوں کے بارے میں بتایا ہے جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دے تو پھر بعد میں وہ بہت بچ جائے گا۔ یہ سب آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یہ امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے، یہ نہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور نہ ہی میرے کوئی بات مانتی ہے۔ میں اس کو جو بھی حکم دیتا یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ میرے ہر بات کا الٹ کرتی ہے۔ اے امیر المؤمنین، یہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہارے ہر حکم کو ماننے، یاد رکھو ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہ ہے جہاں پر تمہاری بیوی کو تمہارے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہ ہے جہاں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر بیماری کے حالات میں کہ ان کے جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اس وقت اس کا صرف ایک ہی سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، کہ ان کے بیویوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر ہی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تم بیمار کے حالات میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 2، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ۔ کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو ہر وقت برائی اور بے حیائی کے لیے ایک ساتھ رہتا ہے۔ ایک شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کیسے غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ نمبر 3، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر مت کرنا، کیونکہ جب عورت کا شوہر اس کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو اس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کے کوئی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے کوئی بات مانتے ہیں۔ اکثر خواتین جو شوہر کو قابو کرنے کے لیے ایک غلط کر بیٹھتی ہے، یہ غلطی نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتی ہے بلکہ گھر والوں کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسے خواتین اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے اکثر تعویذ دینے والے عامل بابا اور پیروں کے ہاتھ چھڑا جاتی ہے، جہاں نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ پورے خاندان کی عزت دار پر داغ لگا دیتے۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسے بات ہے کہ اگر وہ ان پر عمل کر لے گی تو ان کا شوہر نہ صرف ان سے محبت کرے گا بلکہ ہر وقت ان کے مٹی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسے باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کرے گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہے۔ ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اکثر گھریلو ناچ
की वजह से जब औरत अपने घर वालों के सामने यानी अपने माँ बाप या बहन भाई से अपने शौहर की कोई बुराई करती है तो उसके घर वालों का उसके शौहर के साथ रोया बदल जाता है, जिसे देखकर शौहर को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी ने अपने घर वालों के सामने ज़रूर उसकी बुराई की होगी। उस वजह से शौहर की दिल में बीवी के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। ये वजह होती है कि ऐसे औरत कभी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं करती। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपने सहेलियों के सामने अपने शौहर की बुराई न करें। जैसे ख़वातीन को अपने तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है, उस तरह मर्द हज़रात को भी अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बीवियों को चाहिए कि वो हमेशा अपने शौहरों की तारीफ़ करें, किसी गैर के सामने उसे अच्छे अल्फाज से याद करें। अगर आपके सामने कोई आपके शौहर की बुराई करता है तो उसे हरगिज़ न सुने, बल्कि सीधे तरह उसे मना कर दे कि वह आपके शौहर की बुराई न करे। ऐसे करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। शौहरों को अपना गर्वेदा बनाने के लिए अगली बात यह है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए। अच्छे और मज़ेदार खाने में हमेशा उसके पसंद की चीज़ें बनाए। अगर किसी दिन शौहर से कोई ख़ास बात मनवाए हो तो उस दिन उसके पसंदीदा डिश बनाए और अपनी दिल को के मुराद पाले। अगर कोई औरत तरह तरह के और मज़ेदार खाने बनाते हो तो उस बात पर उसका शौहर फख्र करता है। जब शौहर काम काट से थक कर वापस आता है तो अगर बीवी उनके लिए अच्छा खाना बनाएगी तो उसका मूड फ्रेश हो जाएगा और घरेलू नाचा जो भी पैदा नहीं होगी और उस तरह शौहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 4 ये कि तमाम ख़वातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज़ न करे, बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करे। शौहर अपनी बीवी के खुशी के खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर की उस खुशी से को अच्छा समझे और उसकी तारीफ़ करे। नंबर 5 बीवी के ये नसीहत है कि वह अपने शौहर के पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बीवी जब वह काम करे जो उसके शौहर को सख्त नापसंद हो तो उसे घरेलू नाचाकियों ज़रूर होती है। इसलिए बीवी को उस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उनके शौहर को कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है और वह कौन सी बातें हैं जो उसे सह नापसंद है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर नहीं जाने देते, और होने भी ऐसा ही चाहिए कि तमाम ख़वातीन को अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। उसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर के पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छी दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छे और बेहतर बीवी वो होती है जो अपने शौहर का हर मुश्किल वक्त में, हर दुख तकलीफ़ में उसका साथ देती है। जब शौहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी हिसाब देने के लिए रजामंद होती है, लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक्त आता है तो ऐसे वक्त में जो बीवी साथ दे तो है, यकीनन वह बीवी शौहर की दिल पर राज करती है कि उनके एक शौहर इस बात को अच्छी तरह समझता है कि ऐसे वक्त में कि जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो उसकी बीवी साथ है तो यकीनन उसके लिए उससे बेहतर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाज़रीन, अगले और अहम बात यह है कि जो ख़वातीन अमूमन शिकायत करती है कि उनके शौहर हज़रात दूसरे ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो उनको उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह अपने शौहर के लिए पनसनोर कर रहे हैं। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा न हो कि बकरे बालों और मैले कपड़ों के साथ उनका इस्तकबाल करे। साफ़ सुथरा लिबास पहन कर बन सुनूर कर मुस्कुराते हुई अपने शौहर का इस्तकबाल करे। और जो ख़वातीन यह काम करती है, में कोई शक नहीं कि वह अपने शौहर के दिल पर राज करते हैं, कि उनके जिस तरह एक औरत ये चाहती है कि मेरा हावन सिर्फ मुझे ही दे के मुझसे ही बात करे और दूसरे औरतों पर आंख उठा के भी न देखे, बल्कि उसी तरह एक शौहर भी यही चाहता है कि उसकी बीवी भी
सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए तैयार हो। लेकिन हमारे माशरे में अक्सर ख़वातीन की गलती करती है कि जब वो कहे बाहर जाती है तो हो बनती सुनूरती है, लेकिन जब घर अपने शौहर के लिए बनने सुनूरने का वक्त आता है तो उसमें जानबूझकर कोताही करती है और उसी वजह से उनके शौहर दूसरे औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। आठवीं बात यह है कि एक बीवी को चाहिए कि वह अपने शौहर के घर वालों को के बहुत इज़्ज़त करे, अपने शौहर के बहन भाइयों के माँ बाप की इज़्ज़त व एहतराम करे और उनकी खिदमत करे। ये वह काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी के कदर इज़्ज़त और अहमियत को बढ़ देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो ख़वातीन को अपनाने चाहिए कि अगर वह अपने शौहर को अपना दीवाना व गुरवेदा बना जाती है, वो ये कि जब भी उनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो या फिर किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखे, उनके खाने पीने का ख्याल रखे ताकि वो जल्दी सेहतयाब हो जाए और आप दोनों भरपूर और बेहतर तरीके से ज़िंदगी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी भी हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसे कैसे बात को कभी भी किसी तीसरे इंसान के साथ शेयर मत करें और इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हो तो उनके सामने भी लड़ाई झगड़े की बातें न करें, क्योंकि उस चीज़ से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और फिर उस वजह से बहुत सारे वालिदीन अपने बच्चों के अच्छी तरह तरबियत नहीं कर पाते। तो नाज़रीन, ये थे वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल करते ही हैं तो वह अपने घर को जन्नत बना सकती है। अल्लाह ताला हमें दीन के समझ नसीब फरमाए और हम सबको नेक हिदायत नसीब फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बुक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।